Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The Little Bully. So imagine you encounter a bully in your school or in your neighborhood. How would you tackle the situation? Discuss in the class. bully क्या होता है बच्चे? जो आपको टीज करता है, तंग करता है. तो मे बी आपके स्कूल में या फिर आपके नेबरहुड में कोई bully होगा जो आपको क्या करता होगा, आपको परेशान करता होगा. सो कैसे आप उसको टैकल करोगे? This story is about a little boy called Ravi who pricked and pinched other children, and read about the bully who enjoyed hunting others. But one day he met some creature who gave him the lesson of his life. तो ये स्टोरी जो है रवि के बारे में है. रवि एक छोटा सा बुली, लिटिल बॉय जो सबको तंग करता था, परेशान करता था. और एक दिन कुछ लोग उसे मिलते हैं जिसे वो लेसन सिखाते हैं. ओके, सो देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड रवि. ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड. ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव्ड टू टीज all the boys and girls who went to school with him. जो भी उसके साथ बॉय और गर्ल स्कूल जाते थे वो उनको टीज करता था. What he loved to do the most was to pinch. क्या करता था सबसे अच्छा, उसे क्या लगता था? पिंच करना. He could make a big bruise appear in half a second. और इतने जोर से वो पिंच करता था कि एकदम से वहाँ पर ब्लैक और ब्लू कलर का एक घाव पड़ जाता था. ठीक है, ब्रूज हो जाता था. So another trick he played was pricking people with the pin. दूसरा क्या करता था? वो लोगों को पिन जो है उससे प्रिक करता था. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. दूसरे बच्चे भी, किसी को वो अच्छा नहीं लगता था, दूसरे बच्चे भी ट्राई करते थे बट वो इतना हार्ड नहीं कर पाते थे. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. अब एक दिन सब लोग पिकनिक पर जाते हैं, सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. So on that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. सब बच्चे जो हैं वो काफ़ी wild हो गए थे excitement से. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Ravi because he always pinched. सब ट्रेन में चढ़ते हैं सी साइड पर, सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई रवि के साइड में नहीं बैठता. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with the shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Ravi's hand. Nobody went near him. सब लोग वहाँ पर सी साइड पर खेल रहे थे, लेकिन कोई भी रवि के साथ नहीं खेल रहा था. Ravi was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. रवि को गुस्सा आ रहा था and he goes to a sandy corner और वहाँ पर बैठ जाता है. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. उसका अच्छा लंच था और वो सारा लंच जो है खुद ही खा जाता है. He wouldn't offer anything to anyone. किसी को शेयर नहीं करता वो. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I'm so pleased to meet a boy like you. Ravi turned around and stared in fright. और एकदम से आवाज़ आती है, उसके आसपास बहुत ही तेज आवाज़ आती है और वो डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है. रवि saw a monster crab walking sideways out of the pool. और रवि को क्या दिखाई देती है? मॉन्स्टर क्रैब दिखाई देता है उसको. And his eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी. He held out his फ्रंट क्लो टू रवि. और वो अपने फ्रंट क्लो को उठाकर रवि की तरफ ले जाती है. रवि पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब क्लो, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled in pain. लेकिन वो वहाँ से नहीं हटती और रवि उसको हटाता उससे पहले वो अपने पिंसर्स निकालती है और उसको बहुत ज़ोर से निप करती है उसके हैंड पर, यानी कि बहुत ज़ोर से उसको बाइट कर लेती है, बहुत ज़ोर से उसे निप कर लेती है. Oh, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Ravi's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily
आउट ऑफ द पूल, और एक बहुत बड़ा लॉबस्टर, एक बहुत बड़ा क्रैब वहाँ पर आ रहा था, और क्या कहता है वो कि ओ ये तो मेरा कज़न है, और रवि जो है वो डर के मारे बहुत ज़्यादा घबरा रहा था. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लोज एंड पिंच्ड इट सो हार्ड दैट रवि अगेन yelled in pain. और रवि कुछ बोल पाता उससे पहले लॉबस्टर जो है उसके हैंड में वो बाइट कर लेता है, पिंच कर लेता है, और रवि फिर से पेन में चिल्लाता है. Then he started at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Ravi till he was soon black and blue with their pinching. और एकदम से वो देखता है कि वहाँ पूल से बहुत ही सारे क्रैब, प्रॉन और लॉबस्टर जो है वो बाहर निकल कर आते हैं, और उसको जब तक पिंच करते रहते हैं जब तक उसको ब्लू और ब्लैक कलर के निशान नहीं पड़ जाते. डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर इन सरप्राइज. और सारे क्रिएचर्स कहते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि तुम्हें तो ये पसंद है ना पिंच करना. वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू आर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ, कम कम जॉइन इन द फन. और इस तरीके से सारे क्रिएचर उसको टीज करते हैं कि हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं, क्योंकि तुम तो चैम्पियन हो ना पिंचर और प्रिकर के, पिन करते हो सबको, पिंच करते हो, तो चलो चलो हमें ज्वाइन कर लो, बहुत मजा आएगा. रवि leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crab and lobster saw it, they ran to it and began to feast eagerly. और रवि जो है वो डर के मारे, घबरा कर, दर्द के मारे जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है. उसका लंच गिर जाता है पूल में, और उसका लंच देखते ही लॉबस्टर और क्रैब जो है उसके लंच की तरफ भाग जाते हैं. Ravi saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. और रवि को लगता है कुछ टाइम के लिए वो क्रैब और प्रॉन और लॉबस्टर उसे भूल गए हैं. रवि वहाँ से भाग जाता है रोते हुए. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought, but now it hurts, and now I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shouldn't pinch or prick any more. और रवि खुद ही सोचता है कि ये क्यों आए थे, क्योंकि मैं भी तो सबके साथ यही करता हूँ ना, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सब मुझे उनसे बहुत हेट है, क्रैब और लॉबस्टर से. ऐसे ही सब बच्चों को भी मुझसे हेट होगी, पर मैं आगे से कभी भी किसी को पिंच और प्रिक नहीं करूँगा. राइट. सो द स्टोरी इज रिटन बाय नेड मैरी ब्लाइटन, एंड अबाउट द ऑथर, दैट इज Ned Mary Blyton was an English children's writer whose books have been worldwide bestsellers since the 1930s. Her books are still enormously popular and have been translated into 90 languages. As of June 2019, Blyton held 4th place for the most translated author. सो बच्चे, दिस इज़ द स्टोरी. देखा आपने, तो कभी भी किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी को टीज नहीं करना चाहिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. यू हैव टू रीड इट वंस अगेन, लर्न द वर्ड मीनिंग एंड डू द बैक एक्सरसाइज योरसेल्फ.